कैसे हो सब? मजे में? मजे में ही हो ना? आपको लगता है ना डेली टीचर एक ही क्वेश्चन बार बार रिपीट कर रहे हैं, पर क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हम मिल नहीं पा रहे हैं, इसलिए बार बार मुझे ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछना पड़ रहा है। ऐसा लगता है ना कि टीचर ये ऐसे ही बार बार पूछ रहे हैं, पर हम मिल नहीं पा रहे हैं ना, इसलिए बच्चों आपसे ऐसा पूछना है। ओके, तो आप सब घर पे कैसे हो? सेफ हो ना अभी? यस, आप घर पे सेफ ही हो। सेफ मतलब सलामत। आपने सोचा है कभी कि अब कभी भी हम सेफ्टी रूल्स फॉलो नहीं करें तो क्या हो सकता है? कौन कौन से सेफ्टी रूल्स हैं घर पे, स्कूल पे, रोड पे जो हमें फॉलो करने हैं? थोड़े थोड़े से रूल्स आपको पता है, सेफ्टी रूल्स वो मुझे पता है कि कैसे फॉलो करने हैं वो सेफ्टी रूल्स। अब थोड़ी सी जानकारी तो आपके पास है, पर थोड़ी और जानकारी इसके बारे में मैं आज आपको देने जा रही हूँ। तो हमारा चैप्टर 6 कौन सा है? सेफ्टी एंड फर्स्ट एड। कौन सा है हमारा चैप्टर? सेफ्टी एंड फर्स्ट एड। तो आपको पता है पहले सेफ्टी क्या? व्हाट मैटर्स सेफ्टी? हम इंसान की लाइफ कितनी वैल्यूबल है? अवर लाइफ इज वैल्यूबल, सो सेफ्टी मैटर्स। इसलिए सेफ्टी बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है। सेफ्टी मतलब सलामती हमारी, कि हमें कहीं पे भी चोट ना आए, हमें हर्ट ना हो, उसको सेफ्टी बोलते हैं। तो आइए चलिए किड्स, ओपन योर टेक्स्ट बुक माय लर्निंग लेटर, ओपन पेज नंबर 8484। फर्स्ट ऑफ ऑल वी स्टार्ट रीडिंग। कौन सा पेज? 8484। Staying safe. Safety means to be safe. Safety means to protect ourselves from harm. We can be safe if we are careful and do things the proper way. It is important to develop safety habits. Most accidents are caused because of carelessness. All of us must learn safety rules. We must follow them in our daily life. Now next page 85. Why safety matters? Life is valuable. We have to protect it and keep it safe. If we do not follow safety rules, we may get injured. Safety rules at home. It is very important for parents to lay down safety rules for children. Read on the find what safety rules Mani and Mina's mother lays down for them. Mani and Mina's mother is a busy woman. She works for a company. She leaves home at 9 a.m. and gets back home at 6 p.m. Mani and Mina are back home from school before her at 3 p.m. She has a safety chart at home that says safety matters. She wants Mani and Mina to follow the safety rules in the chart. Here is what the chart says. Now in the chart, we should not touch switches and plugs with wet hands. We should not play with electric switches or appliances. We might get an electric shock. We should not play with sharp and pointed objects such as a scissor, shaving blade, needles and knives. We should not touch chemicals or any unknown bottle. We should not play in the kitchen. We should keep everything in its proper place. We should not put objects such as coins or marbles into our mouth. Turn the page, page number 8686. Meena and Mani are happy that their mother takes so much of care for their safety. They always follow all the instructions given. They decide to show their love for her. They make a greeting card for her on Mother's Day and present it to her. Safety rules at school. Let us see what happens at Syam's classroom one morning. His teacher is about to teach him and his friends
something very important. Teacher says, good afternoon students. Student says, good afternoon ma'am. Teacher says, today's class will be on the safety rules that should be followed in school. I would like each of you to tell me one safety rule that we should follow. अब यहीं तक, पहले अब मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ, वो आपको सुनना है. स्टेइंग सेफ मतलब सलामत रहना. सेफ्टी मीन्स टू बी सेफ. सेफ्टी मीन्स सलामत रहना. सेफ्टी मीन्स टू प्रोटेक्ट अवरसेल्व्स फ्रॉम हार्म. खुद को, अपने आप को हर्ट होने से बचाना, इंजर्ड होने से बचाना, उसको बोलते हैं सेफ्टी. वी कैन बी सेफ इफ वी आर केयरफुल एंड डू थिंग्स प्रॉपर वे. हम प्रॉपर वे में और ध्यान रखकर कोई भी वर्क करेंगे तो हम कैसे रहेंगे? सेफ रहेंगे. इट इज इम्पोर्टेंट टू डेवलप सेफ्टी हैबिट्स. ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि हमें अपने अंदर सेफ्टी हैबिट्स डेवलप करनी है. हैबिट मतलब डेली रूटीन में जो आप वर्क करते हो वो आपकी क्या बन जाती है बच्चों? वो आपकी हैबिट बन जाती है. मोस्ट एक्सीडेंट्स आर कॉज्ड बिकॉज ऑफ केयरलेसनेस. अगर हम ध्यान नहीं रखते, ध्यान चूक जाते हैं, तब भी हमारा एक्सीडेंट होता है. तो केयरलेसनेस की वजह से, बेदरकारी की वजह से हमारा एक्सीडेंट हो सकता है. ऑल ऑफ अस मस्ट लर्न सेफ्टी रूल्स. हम सबको सेफ्टी रूल्स कंपल्सरी लर्न करने मतलब सीखने चाहिए. वी मस्ट फॉलो देम इन आवर डेली लाइफ. हमें सेफ्टी रूल्स ओनली लर्न करके बैठ नहीं जाना है, उसको डेली लाइफ में फॉलो भी करना है. तो वाई सेफ्टी मैटर्स. सेफ्टी क्यों मैटर करती है? लाइफ इज वैल्यूएबल. हमारी जिंदगी हमें एक ही बार मिलती है, तो वो बहुत ही कीमती है. अगर ये पेन गुम हो गई तो दूसरी पेन आ जाएगी. पेंसिल आपकी गुम हो गई या कहीं पे भी फिनिश हो गई है सही सापन करते करते, तो वो दूसरी आ जाएगी. और हमारी लाइफ एक बार चली गई तो वो दोबारा मिलती नहीं है. सो लाइफ इज वैल्यूएबल. तो वी हैव टू प्रोटेक्ट इट एंड कीप इट सेफ. तो हमें उसको बचाना है और उसको सेफ भी रखना है. तो वी डोंट फॉलो सेफ्टी रूल्स तो वी मे गेट हर्ट, इंजर्ड. अगर हम सेफ्टी रूल्स को फॉलो नहीं करेंगे तो हम क्या होंगे? इंजर्ड मतलब घायल हो सकते हैं. तो अब सेफ्टी रूल्स एट होम. यहाँ पे मीना एंड मनी की मम्मी ने कुछ सेफ्टी रूल्स बनाए. क्यों? क्योंकि मीना एंड मनीज मदर इज अ बिजी वुमन. वो जॉब पे वर्क करती थी, कंपनी में वर्क करती थी, और वो घर पे से 9 o'clock को अपने घर से जॉब पर चली जाती थी और शाम को 6 बजे आती थी. पर मनी एंड मीना गेट बैक होम. मम्मा आए उससे पहले वे दोनों बहनें घर पे आ जाती थी. कितने बजे? 3 बजे. तो उसकी मम्मा ने इन दोनों के लिए सेफ्टी चार्ट बनाया था और घर पे रखा था. तो वो सेफ्टी चार्ट क्या कहते हैं? उसमें सेफ्टी रूल्स थे, फॉलो करने थे. वो क्या कहते हैं वो देखते हैं. वी शुड नॉट टच स्विचेस एंड प्लग विथ वेट हैंड्स. अगर हमारे हैंड्स गीले हैं तो हमें स्विचेस और प्लग को टच करना नहीं चाहिए. वी शुड नॉट प्ले विथ इलेक्ट्रिक स्विचेस और अप्लायंसेस. वी माइट गेट एन इलेक्ट्रिक शॉक. अगर हम वेट हैंड से स्विचेस, इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस मतलब फ्रीज, मिक्सर, टीवी, यस, हैंड मिक्सर, ये सब कुछ है, वो इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस है. इसको वेट हैंड से टच करना नहीं चाहिए. क्यों? क्योंकि वी माइट गेट एन इलेक्ट्रिक शॉक. हमें उससे करंट लग सकता है, चोट आ सकती है. फिर आया वी शुड नॉट प्ले विथ शार्प एंड पॉइंटेड ऑब्जेक्ट्स सच एज ए सीजर, सेविंग ब्लेड, नीडल एंड नाइफ. शार्प एंड पॉइंटेड ऑब्जेक्ट से हमें कभी भी खेलना नहीं चाहिए. सीजर, कैंची, सेविंग ब्लेड्स, अपने पापा जो कर रहे हैं ना आपके पापा सेविंग्स, उसमें ब्लेड होती है उसको, नीडल्स मतलब सुई, नाइफ मतलब चाकू, छरी, इसको कभी भी हमें टच करना नहीं चाहिए. फिर आया वी शुड नॉट टच केमिकल और एनी अननोन बॉटल. किसी भी अननोन बोतल का केमिकल आप पहचानते नहीं हो तो उसको टच करना
नहीं चाहिए। वी शुड नॉट प्ले इन द किचन, किचन में कभी भी खेलना नहीं चाहिए। क्यों? मम्मी खाना पका रही है, आप बॉल के साथ किचन में खेल रहे हो, ये स्टोव ऑन है, क्या होगा? आग लग सकती है ना, मम्मी को चोट आ सकती है ना, तो कभी भी हमें किचन में खेलना नहीं चाहिए। फिर वी शुड कीप एवरीथिंग इन इट्स प्रॉपर प्लेस, हमें सारी चीजें उसकी प्रॉपर प्लेस पे ही रखनी चाहिए। आप टॉय से खेल रहे हो, खेल लिया तो फिर अपनी जगह पे टॉय सेल्फ है वहीं पे रखनी चाहिए। एंड वी शुड नॉट पुट ऑब्जेक्ट्स सच एज ए कॉइन और मार्बल्स इनटू आवर माउथ, कॉइन और मार्बल्स अपने मुंह में रखना नहीं चाहिए। अगर यहाँ से निकल गए तो यहाँ पे अटक गया, फिर ऑपरेशन करना पड़ता है उसको निकालने के लिए। तो कभी भी कोई भी अननोन चीज अपने मुंह के अंदर रखनी नहीं चाहिए। तो मीना एंड मनी हैप्पी, वो बहुत खुश थी कि उसकी मम्मा उसकी कितनी देखभाल कर रहे, सो सेफ्टी के लिए कितनी देखभाल कर रहे। They always follow all the instruction given. वो दोनों बहनें जो सारी इंस्ट्रक्शन दी जाती थी वो ऑलवेज फॉलो करती थी। They decide to show their love for her. उसकी मम्मा के लिए दोनों बहनों ने एक ग्रीटिंग कार्ड बनाया और कब दिया? मदर्स डे पर उसको प्रेजेंट किया। ये था सेफ्टी रूल्स एट होम। अब आया सेफ्टी रूल्स एट स्कूल। तो श्याम का क्लासरूम का पिक्चर है जिसमें टीचर आज कुछ नया सिखाने जा रही थी। तो टीचर ने पहले सबको ग्रीट किया और बोला कि आज का क्लास सेफ्टी रूल्स पर है जो हमें स्कूल में फॉलोज करने चाहिए। आई वुड लाइक ईच ऑफ यू, मैं आपसे ऐसी इच्छा रखती हूँ कि आप एवरी स्टूडेंट टर्न बाय टर्न एक एक सेफ्टी रूल जो है स्कूल पे फॉलो करना है वो मुझे बताइए। यहीं तक था। अब पेज नंबर 8787 पे रीडिंग कर रहे हैं। लेट अस स्टार्ट विथ श्याम। वी शुड नॉट पुश और पुल वन अनदर while climbing stairs. Teacher says, very good Shyam. We should always form a queue while climbing down the stairs. By pushing or pulling each other, we will hurt ourselves and others too. Next we have Meera. Teacher says, well said Meera. Do you all agree with her? पर उससे पहले मैम, we should not climb on desks or chairs in the classroom. We might fall and get hurt. We should sit quietly in the classroom. तो टीचर ने बोला, well said Meera. Do you all agree with her? Student says, yes ma'am. Teacher says, who wants to go next? Raman says, may I ma'am? Teacher says, yes, of course. We should not throw chalk at one another or destroy school property. Turn the page. Page number 8888. Teacher says, rightly said Raman. Shunita says, ma'am, shall I tell a safety rule? So stand in a queue while getting in and out of the school bus. Do not climb onto a moving bus. Teacher says, well said Sunita. Teacher says, today's lesson was really useful. We have discussed for school safety rules that we should follow. I hope you will keep in mind all the safety rules discussed in class today. Think of a few other rules that we should follow in school. We shall discuss them tomorrow. Student says, thank you ma'am. Just then they hear school bell ring. It's time to go home. All the students take their bag and stand in a queue to get into school bus. Now, safety on the road. Mr. Sharma is a traffic policeman. He sees a few children crossing the road in a hurry between the vehicles. He decides to give them a class on the safety rules. He calls all the children. He requests them to attend the road safety class in the Central Park. At the park, he talks about road safety rules. The rules are as follows. We should not run on the road. We should always walk on the footpath. Page number 89. We should always stand in a queue while waiting for a bus. We should walk in a line.
We should not board or get down from a moving bus. We should not put our hands or head out of a moving bus or car. We should not talk on the phone while crossing the road. We should always cross the road only at the zebra crossing with an adult. All the children at the park promise the policeman that they will abide by the road safety rules without fail. Next, the policeman shows the children a picture of traffic lights. He explains the colors to them. What do the traffic light tell the people who drive vehicles? The red light tells to stop. The yellow light tells to wait. The green light tells to go. He also asks them to follow some rules. Okay kids, यहीं तक. अब पेज नंबर वापिस 87 पे. लेट्स स्टार्ट विथ श्याम. श्याम क्या सेफ्टी रूल बताता है स्कूल पे फॉलो करने के? वो वी शुड नॉट पुश और पुल वन अनदर व्हाइल क्लाइंबिंग स्टेयर्स. हम जब भी स्टेयर्स का यूज कर रहे हैं तो एक दूसरे को पुश और पुल करना नहीं चाहिए. क्या करना है? मेक ए लाइन में जाना है व्हाइल क्लाइंबिंग डाउन द स्टेयर्स. जब भी आप स्टेयर्स चढ़ रहे हो या उतर रहे हो आपको मेक ए क्यों एक लाइन बनानी है और उसमें ही जाना है. बाय पुशिंग और पुलिंग ईच अदर वी विल हर्ट आवरसेल्व्स एंड अदर्स टू. एक दूसरे को पुशिंग और पुलिंग करोगे तो दोनों को चोट आ सकती है. तो पुशिंग और पुलिंग करना बिल्कुल ही अलाउड नहीं है. टीचर ने कहा वेल सेड श्याम. उसके बाद मीरा ने क्या रूल्स बताए? मैम वी शुड नॉट क्लाइंब ऑन डेस्क और चेयर इन द क्लासरूम. वी माइट फॉल एंड गेट हर्ट. वी शुड सिट क्वाइटली इन द क्लासरूम. बैठते हो आप सब ऐसे क्लासरूम में क्वाइटली? नहीं बैठते ना. तो वी शुड नॉट क्लाइंब ऑन डेस्क और चेयर. चेयर और डेस्क पे चढ़ना नहीं चाहिए. आप गिर सकते हो, आपको चोट आ सकती है. आपको सिट क्वाइटली इन द क्लासरूम. क्लासरूम के अंदर शांति से बैठना है, कोई शरारत करनी नहीं है. तो टीचर ने बोला वेल सेड मीरा, ये तो बहुत ही सही है. अब कौन बताएगा एक सेफ्टी रूल? तो रमन ने पूछा कि मैं बताऊं. देखो यहाँ पे भी पहले मैम की उसने परमिशन ली, उसके बाद उसने रूल्स बोले. तो वी शुड नॉट थ्रो चोक एट वन अनदर और डिस्ट्रॉय स्कूल प्रॉपर्टी. हमें एक दूसरे के ऊपर चॉक स्टिक या कुछ थ्रो करना नहीं चाहिए. एंड डोंट डिस्ट्रॉय स्कूल प्रॉपर्टी. स्कूल की जो प्रॉपर्टी है उसको भी नुकसान पहुंचाना नहीं चाहिए. तो टीचर ने बोला राइटली सेड रमन की, बहुत ही सही आपने बताया. हमें स्कूल प्रॉपर्टी को कभी भी नुकसान करना, उसको डिस्ट्रॉय करना नहीं चाहिए. फिर सुनीता ने एक रूल बताया कि स्टैंड इन ए क्यू व्हाइल गेटिंग इन एंड आउट ऑफ द स्कूल बस. डोंट क्लाइंब ऑन टू ए मूविंग बस. के लाइन में क्यू मतलब एक ही लाइन में खड़े रहो जब आप बस के अंदर जाओ और बस के बाहर जाओ. स्कूल के डोंट क्लाइंब ऑन ए मूविंग बस. अगर बस चल रही है तो आपको उस पे चढ़ना या उतरना नहीं चाहिए. तो टीचर ने कहा वेल सेड सुनीता, ये सेफ्टी रूल भी बहुत सही है. टुडेज लेसन वॉज रियली यूजफुल. आज का लेसन बहुत ही यूजफुल था. आज हमने 4 सेफ्टी रूल्स डिस्कस किए हैं. कहाँ पे फॉलो करने हैं? स्कूल के अंदर. आपको ऐसा लगता है मुझे कि आपको ये अपने माइंड में बिठा देना चाहिए सेफ्टी रूल्स. और हम आगे सेफ्टी रूल्स के बारे में डिस्कस करेंगे. पर आज जो डिस्कस किया है वो आपको अच्छी तरह से याद रखना है. ऐसा टीचर ने कहा कि वी शैल डिस्कस टुमारो. बाकी का हम कल डिस्कस करेंगे. तो सब स्टूडेंट्स ने क्या बोला? थैंक यू मैम. और ऐसे ही स्कूल बेल बज गई. सब बच्चे का घर जाने का टाइम हो गया. अब आया सेफ्टी ऑन द रोड. एक दिन ट्रैफिक शर्मा, मिस्टर शर्मा ट्रैफिक पुलिसमैन थे. उसने देखा कि कुछ बच्चे जल्दबाजी में रोड क्रॉस कर रहे हैं. व्हीकल्स आ रहे हैं, जा रहे हैं, फिर भी वो बच्चे रोड क्रॉस कर रहे हैं. तो उन्होंने सब बच्चों को बुलाया
और उससे रिक्वेस्ट की कि गार्डन में सेंट्रल पार्क में मैं सेफ्टी क्लास ले रहा हूँ, वहाँ को आना है। तो सब बच्चे वहाँ पे गार्डन सेंट्रल पार्क में गए और पुलिसमैन ने जो ट्रैफिक रूल्स बताए वो यहीं पे। वी शुड नॉट रन ऑन द रोड। हमें कभी भी रोड पे रनिंग मतलब दौड़ना नहीं चाहिए। वी शुड ऑलवेज वॉक ऑन द फुटपाथ। हमें ऑलवेज चलने के लिए फुटपाथ का यूज करना चाहिए। फिर आया वी शुड ऑलवेज स्टैंड इन ए क्यू व्हाइल वेटिंग फॉर अ बस। वी शुड वॉक इन अ लाइन। हम ऑलवेज क्यू बनानी है, लाइन बनानी है। कब? जब भी हम बस आने का वेट कर रहे हैं तब, और हमें लाइन में ही चलना है। तो वी शुड वॉक इन अ लाइन। फिर आया वी शुड नॉट बोर्ड और गेट डाउन फ्रॉम ए मूविंग बस। अगर बस चल रही है तो हमें बस से उतरना नहीं है और बस में चढ़ना भी नहीं चाहिए। वी शुड नॉट पुट आवर हैंड्स और हेड आउट ऑफ ए मूविंग बस और कार। ऐसे अगर बस चल रही है विंडो में से ऐसे मुंह बाहर निकालना, अपना हेड बाहर निकालना नहीं चाहिए। फिर वी शुड नॉट वॉक ऑन द फोन व्हाइल क्रॉसिंग द रोड। रोड क्रॉस करते करते वक्त हम फोन पे बात करके कर रहे, ऐसा करना नहीं चाहिए। सारे सेफ्टी रूल्स है किड्स, ये अच्छी तरह से दिमाग में बैठा लेना। फिर ऑलवेज क्रॉस द रोड ओनली एट द ज़ेब्रा क्रॉसिंग विथ एन एडल्ट। ज़ेब्रा क्रॉसिंग कैसा होता है? एक ब्लैक स्ट्रिप, एक व्हाइट स्ट्रिप, ब्लैक व्हाइट, ऐसी स्ट्रिप्स को क्या बोलते हैं? ज़ेब्रा क्रॉसिंग बोलते हैं। उस पर ही चल के हमें रोड क्रॉस करना चाहिए। तो इतने सारे लेसन्स ट्रैफिक पुलिसमैन ने दिया और सब बच्चों ने प्रॉमिस किया कि हम अगर भूले बगैर ही ये सेफ्टी रूल्स आज से हम फॉलो करेंगे। फिर पुलिसमैन ने और एक पिक्चर दिखाया बच्चों को ट्रैफिक लाइट का, कि ये आपको दिमाग में बैठा देना है कि ट्रैफिक लाइट क्या कहती है और उसको आप फॉलो करेंगे। तो रेड लाइट टेल्स टू स्टॉप। जब भी ट्रैफिक सिग्नल में रेड लाइट हो तो व्हीकल्स क्या करते हैं? स्टॉप हो जाते हैं। येलो लाइट हो तब व्हीकल्स ओनली स्टार्ट होते हैं, पर जाते नहीं है। व्हीकल बंद होते हैं ना, वो की से स्टार्ट करते हैं। रेडी टू गो, जाने के लिए रेडी होते हैं, जाते नहीं। एंड ग्रीन लाइट टेल्स टू गो। जब ग्रीन लाइट होती है ट्रैफिक सिग्नल में तभी व्हीकल्स मूव करके जाते हैं। ओके, पेज नंबर 9090। कौन सा पेज? इफ देर आर नो ट्रैफिक लाइट्स और ज़ेब्रा क्रॉसिंग, टेक द हेल्प ऑफ एन एडल्ट एंड डू द फॉलोइंग. Look to your right, look to your left, again look to your right, cross the road when it is clear. More on safety. We should not play on the road, we should play in the playground. Page number 91. We should play safely. We should not walk on wall or lean over balconies. We should never go swimming alone. We should always use a swimming tube while swimming in a pool. Turn the page 92. We should not tease animals, they might harm us and we may get hurt. First aid. First aid is the first help given to a person who is hurt. This is done before the doctor comes. First aid can help save a life. First aid kit. Every school, home and vehicle should keep a first aid kit. It should be kept within easy reach. A basic first aid box contains cotton, some bandage, a pair of scissors and an antiseptic lotion or cream. Page number 93 page. What is need for a first aid kit? A first aid kit comes in handy when someone is hurt or sick, someone suffers from burns or someone has an allergy. ओके, यहीं तक था। अब वापिस पेज नंबर 9090 पे। अगर ट्रैफिक लाइट्स दी नहीं है, ट्रैफिक लाइट रेड टेल्स टू स्टॉप, येलो
येलो टेल्स टू वेट एंड ग्रीन टेल्स टू गो। पर अगर कहीं पे भी ट्रैफिक लाइट नहीं है और आपको रोड क्रॉस करना है, अब तो आपको अपने एडल्ट की हेल्प लेनी है। फिर क्या करना है? लुक एट टू योर राइट, लुक एट टू योर लेफ्ट, अगेन लुक एट टू योर राइट एंड देन क्रॉस द रोड। मतलब अपनी राइट साइड देखो, फिर अपनी लेफ्ट साइड देखो, अगेन अपनी राइट साइड देखो, फिर रोड को क्रॉस करो। ये आपको अपने दिमाग में बैठा देना है। फिर आया मोर ऑन सेफ्टी। और सेफ्टी कहाँ पे रखनी है? तो वी शुड नॉट प्ले ऑन द रोड। रोड पे खेलना चाहिए ना, आप सब तो रोड पे ही खेलते हो, नहीं खेलते? तो वी शुड नॉट प्ले ऑन द रोड। व्हीकल्स आ रहे हैं, जा रहे हैं, अगर आप रोड के खेलोगे तो उसके साथ टकरा जाओगे, चोट आएगी ना। तो कभी भी रोड पे खेलना नहीं है। वी शुड प्ले इन द प्लेग्राउंड। रोड पे नहीं खेलना है, कहाँ पे खेलना है? प्लेग्राउंड के अंदर। और सेफली खेलना है, सलामत। ऐसे नहीं कि कुछ भी आपको चोट आ जाए, ऐसे दौड़ो, ऐसे खेलो, सेफली खेलना है। फिर नो वॉक ऑन वॉल और लीन ओवर बालकनी। बालकनी में चढ़ के ऊपर ऐसे झुक के देखना नहीं चाहिए और वॉल पे चढ़ना नहीं चाहिए। नेवर गो स्विमिंग अलोन। अकेले कभी भी स्विमिंग करना नहीं चाहिए। ऑलवेज यूज ए स्विमिंग ट्यूब इन अ स्विमिंग पूल। स्विमिंग पूल में रबर से बनी हुई या प्लास्टिक की बनी हुई, रबर की, मोस्टली रबर की ही होती है स्विमिंग ट्यूब, वो बनी हुई है, वो स्विमिंग पूल में होती है। उसका यूज करके ही आपको स्विमिंग करनी चाहिए। अकेले स्विमिंग भी करना अलाउड नहीं है। फिर नॉट टीज एनिमल्स। किसी एनिमल को हमें परेशान करना, फन, उसका मजाक बनाना नहीं चाहिए। दे माइट हार्म अस। वो उल्टा आपको बाइट कर सकता है। डॉग को परेशान करोगे तो क्या करेगा? वो आपको बाइट कर लेगा। तो वी मे गेट हर्ट, तो हमें चोट आ सकती है, इसलिए कभी भी ऐसा करना नहीं है। नाउ फर्स्ट एड। फर्स्ट एड फर्स्ट हेल्प है गिवन टू ए पर्सन हु इज हर्ट। जिसको चोट आई है उसको पहली हेल्प डॉक्टर के आने से पहले दी जाने वाली हेल्प को फर्स्ट एड कहते हैं। हम यहाँ स्कूल पे आपको सीढ़ियों से अगर मजाक करते करते गिर गए, चोट आई, तो आपको स्कूल में ही फर्स्ट एड किट से पहले डॉक्टर को बुलाए, उससे पहले आपको खून निकल रहा है तो क्या करते हैं? डेटॉल लगा के बैंडेज कर देंगे। तो वो है फर्स्ट एड। मतलब डॉक्टर के आने से पहले दी जाने वाली ट्रीटमेंट को फर्स्ट एड बोलते हैं। इससे किसी भी इंसान की जान भी बच सकती है। तो एवरी स्कूल, होम एंड व्हीकल, तीनों जगह पर फर्स्ट एड किट तो ऑलवेज होनी ही चाहिए। फर्स्ट एड किट में क्या क्या होता है बच्चों? कॉटन, बैंडेज, सीजर, कैंची, एंटीसेप्टिक लोशन, एंटीसेप्टिक मतलब सड़न रोकने वाली दवा, ये सब कुछ फर्स्ट एड किट में होता है। और ये फर्स्ट एड किट क्यों जरूरी है? कि समवन इज हर्ट और सिक, कोई किसी को चोट आई है, कोई बीमार पड़ा है। समवन सफर फ्रॉम बर्न, किसी को आग से जल गया है कुछ पार्ट, तो उसके लिए। समवन हैज एन एलर्जी। एलर्जी मतलब अगर आपकी बॉडी में कुछ भी सूट नहीं कर रहा है तो उसमें बॉडी रिएक्ट करेगी, तो उसको बोलते हैं एलर्जी। इन सब से बचने के लिए फर्स्ट एड किट स्कूल में, व्हीकल में और घर पे कंपलसरी होनी चाहिए। तो किड्स, हम वापिस सेफ्टी रूल्स यहाँ पे फॉलो कर रहे हैं, देखते हैं कि कौन कौन से। नॉट एट होम, घर पे फॉलो किए जाने वाले सेफ्टी रूल्स। नॉट टच स्विचेस विथ वेट हैंड, नॉट प्ले विथ इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, नॉट टच केमिकल्स, नॉट प्ले इन द किचन, कीप एवरीथिंग इट्स प्रॉपर प्लेस एंड नॉट प्ले विथ शार्प ऑब्जेक्ट्स। ये रूल्स हमें घर पे फॉलो करने हैं। अब सेफ्टी रूल्स एट स्कूल। नॉट पुश और पुल while climbing stairs, not climb on desks or chairs, not throw chalk at one another. 4. Stand in a queue while getting in and out of the
स्कूल बस, ये रूल्स हमें स्कूल पे फॉलो करने हैं। अब ऑन द रोड, रोड पे फॉलो होने वाले रूल्स, नॉट रन ऑन द रोड, वॉक ऑन द फुटपाथ, stand in a queue while waiting for bus, do not board or get down from a moving bus, not talk on phone while crossing the road. 6. Cross the road only at the zebra crossing. ओके किड्स, ये थे सेफ्टी रूल्स जो हमें एट होम, एट स्कूल एंड ऑन द रोड तीनों जगह पर फॉलो करने हैं। तो अब आपको ये चैप्टर अच्छी तरह से माइंड में क्लियर हो गया होगा कि हमें कौन कौन से रूल कहाँ पे फॉलो करने, और ये बात याद रखनी है, अपने दिमाग में अच्छी तरह से ये रूल्स याद करके उसको फॉलो करना है। ओके ओके किड्स, अब ये चैप्टर यहाँ पे फिनिश होता है। आई होप यू क्लियरली अंडरस्टैंड दिस चैप्टर। ओके, थैंक यू। आभार।